اور خبر تفصیل سے حیدرآباد کے علاقے دارالسلام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا، جس میں ملک بھر کے علماء و دانشوروں کے علاوہ عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جلسے سے علماء نے اپنے خطاب کے دوران اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا مشورہ دیا۔ اسدالدین اویسی نے اپنے خطاب میں کہا کہ نا امیدی کفر ہے، انشاءاللہ نا امیدی کو ہم اپنے قریب آنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دین پر قائم رہیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست داخل کی جائے گی اور 5 ایکڑ اراضی دینے کی جو بات کہی گئی ہے اس کو قبول کیا جائے یا نہیں، اس پر بھی فیصلہ لیا جائے گا۔ مصیبتیں آئیں، نوجوانوں تم کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی جوانی میں بابری مسجد کی شہادت دیکھی۔ انشاءاللہ تعالی نا امیدی کو ہمارے قریب آنے نہیں دیں گے، اور میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں تم سے صرف 2 چیزیں مانگ رہا ہوں۔ مجھے نا امید مت کرو، آپ تم سیاست میں حصہ لو، اپنی پارٹی کا ساتھ دو اور نمازی بن جاؤ۔ میرے بھائی، کیا آپ یہ کریں گے؟ کیا آپ سیاست میں حصہ لیں گے، اپنی پارٹی کا ساتھ دیں گے؟ سنو، بھارت سے اسلام مکت کرنے کی سازش کرنے والوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم ظلم کرے گا مگر اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ دنیا سے اسلام کو مٹا سکے۔ چنگیز خان تاتاریوں نے 40 دن تک بغداد کو جلایا، مگر چنگیز خان کا پڑپوتا دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج حالات ناسازگار ضرور ہیں، مگر یاد رکھو یہ RSS کو پہچانو، RSS کو پہچانو، تم یاد رکھو یہ RSS وہ ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں تمہارے اقبال کے دن چلے گئے۔ گزشتہ 10 سال سے یہاں کے نوجوانوں نے ایک روایت بھی قائم کی ہے، خاص طور پر پورے شہر حیدرآباد سکندرآباد میں بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر خاص طور پر عید میلاد کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کیمپ کا کیا مقصد ہے، کس مقصد کے تحت یہاں پر نوجوان بلڈ ڈونیشن منعقد کر رہے ہیں؟ یہاں پر میرے ساتھ ایک نوجوان کھڑے ہیں، عثمان صاحب، جو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے۔ عثمان بھائی، بتائیں ہمیں یہ آپ لوگ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کر رہے ہیں کس جذبے کے تحت بتائیں مختصراً۔ ہمارا ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا نام انسان فاؤنڈیشن ہے، ہم انسانیت کے اوپر کام کرتے ہیں، تو آج محسن انسانیت کی پیدائش کا دن ہے۔ اس جذبے سے ہم ہندو مسلم تمام کمیونٹیز مل کے یہ ہمارا 6th بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے۔ یہ تیلیسیمیا اور کینسر کے پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے، یہ بالکل نان پولیٹیکل رہتا، اس میں ہر سیاسی جماعت کے لوگ آتے ہیں، سوشل ورکرز آتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ہندو بھائی بھی بہت جس میں ڈونیشنز دیتے ہیں بلڈ کے، تو یہ کیمپ ہر سال چلتا ہے۔ تو ابھی تک کتنے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں، کتنا جو ہے خون کا عطیہ آپ لوگوں نے جمع کیا؟ نیئر اباؤٹ 1100 to 1200 لوگ ڈونرز یہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ ہر سال یہاں پر جو ہے میلاد بلڈ ڈونیشن کیمپ لگتا ہے، سرکار کے واسطے یہاں پر آیا ہوں، اپنا خون عطیہ کرا ہوں۔ سر آپ کی عمر کیا ہے؟ اور 61 ایئرس ہے، اللہ کی وجہ سے۔ جی، میں میرے لڑکوں کو لے کر آیا یہاں پہ، ہر سال بلڈ ڈونیٹ کے لیے آتا ہوں، بچوں کو یہی کہ ان جنریشن میں بتانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ کل کے دن اب موت جینا مرنا سب کو ہے، اب میں کل کے دن چلے جاؤں تو بچے بڑے ہوں گے تو ارے ہمارے ابو یہ کرتے تھے، ہمارے ابو یہ کرتے تھے، میلاد کے موقع پہ ہو یا خالی ٹائم پہ ہو، تو بچوں کو بھی معلوم ہو سکے کہ بچوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا اچھی چیز ہے۔ کا جو یوم تھا اس کے لیے جو ہے یہاں پر سیکیورٹی تو تھی سڑکوں پر، لیکن یہاں پر کسی بھی قسم کا جو ایسا واقعہ پیش نہیں ہے جس سے جو ہے جس سے امن کو کوئی خطرہ ہو۔ حیدرآباد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل نارمل سا دن ہے، پورے جلوس جتنے بھی جلوس ہیں اس کو اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارے نمائندے انیس الرحمان آج میلاد النبی کے موقع پر جلسے اور جلوس کا جائزہ لیں، اور ساتھ ہی خاص موقع پر آج بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد کیے گئے تھے جس کا انہوں نے جائزہ لیا۔ اور آگے بڑھتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سنگاریڈی میں بھی ریلی نکالی گئی، نرساپور میں بھی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ میلاد ریلی میں عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریلی کے موقع پر
SI सत्यनारायण की क़यादत में सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। रैली में सियासी व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। नगर कर्नूल के जिला कोल्हापुर में जलसा मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद किया गया, जिसमें उलमा व दानिश्वरों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मिलाद कमेटी की जानिब से शहर में रैली निकाली गई। मकामी रुकन असम्बली बी हर्षवर्धन रेड्डी ने रैली में शिरकत की और मकामी अवाम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर के अवाम को चाहिए कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले और अमन अमान को कायम करें। मोहम्मद प्रवक्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम యొక్క జన్మదినం సందర్భంగా కొల్లాపూర్ పట్టణంలో ముస్లిం సోదరులందరూ ఘనంగా ఆయన జన్మదిన కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరుగుతుంది। అందులో భాగంగానే ఈ రోజు పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపుగా ర్యాలీగా ఏర్పాటు చేసి అందరూ ఈ రోజు జామా మసీదులో ప్రార్థన చేసిన తర్వాత పేద ప్రజలకు అందరికీ ఆయన పేరు మీద అన్నదానాలు కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది। आदिलाबाद में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया। मंचरियाल में मिलाद रैली निकाली गई। इस्लामपुर मस्जिद से रैली का एहतमाम किया गया, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए जाफर नगर में अख्ताम को पहुंची। उलमा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है। अमन और भाईचारे को फरोग देने के लिए ये रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में वाक़ एक फंक्शन हॉल में नाखुशगवार वाक़या पेश आया। फंक्शन हॉल की दीवार गिरने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक है। तमाम जख्मियों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया है। दीवार गिरने से करीब में पार्क की गई कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। काचीगुड़ा पुलिस और GHMC अमले ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और मलबे को साफ किया। हैदराबाद में फंक्शन हॉल की दीवार गिरने का मामला, महलुकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान। GHMC ने किया ऐलान, जख्मियों को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मेयर ने ऐलान किया है। हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं और 8 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। तो बड़ी खबर, फंक्शन हॉल की दीवार गिरने का यह मामला, महलुकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान। GHMC ने ऐलान किया है, जख्मियों को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। हैदराबाद मेयर ने ऐलान किया है। हादसे में 6 अफराद हलाक हुए हैं, 8 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। तो बड़ी खबर, हैदराबाद में फंक्शन हॉल की एक दीवार गिरने से 6 अफराद हलाक हुए हैं, 8 शदीद जख्मी हुए, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। महलुकीन को फीकस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया है। GHMC ने यह ऐलान किया है, जख्मियों को इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मेयर ने इसका इंतजाम किया है। तेलंगाना भर में RTC मुलाजिमीन की हड़ताल जारी है। आज एम्प्लॉयज यूनियन दफ्तर में RTC JAC का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें RTC JAC लीडरों के अलावा BJP, कांग्रेस, तेलुगुदेशम, CPI, CPM, TJS के अलावा दीगर पार्टियों के लीडर शरीक थे। इजलास के दौरान कल अदालत में पेश किए जाने वाले मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा मुस्तकबिल में मुनक्किद किए जाने वाले जेल भरो और चक्का जाम जैसे प्रोग्रामों के इनकाद पर भी गौर किया गया। రేపు నియోజకవర్గంలో ప్రజాప్రతినిధులు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇళ్ల ముందర నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని చెప్తూ రేపటి కార్యక్రమానికి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించాలి। దాంతోపాటు ఏదైతే రేపు జరగబోయే నిరసన కార్యక్రమంలో ప్రధానమైన డిమాండ్ సమస్యలను పరిష్కరించాలి, కోర్టు సూచన మేరకు చర్చలు జరపాలి, దాడులను ఖండించాల్సిందిగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు కోరడం జరుగుతుంది। ఎల్లుండి 12 తారీఖు నాడు నేను మరి నాతో పాటు కో-కన్వీనర్లు 3 నిరవధిక నిరాహార దీక్ష కూర్చోవడానికి పోలీసు వారికి అప్లై చేసి పర్మిషన్ తీసుకొని నిరవధిక నిరాహార దీక్ష కూర్చోవడం నిర్ణయం జరిగింది। మాకు మద్దతుగా, మా నలుగురికి మద్దతుగా జిల్లాల్లో సామూహిక దీక్షలు జరుగుతాయి। అన్ని రాజకీయ పార్టీల వాళ్ళు కూడా అక్కడ పాల్గొనాల్సిందిగా మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మరి 13 తర్వాత 13, 14 అని మరి మానవ హక్కుల కమిషను,
ఉమెన్ సంబంధించిన కమిషన్ కలిసి ఢిల్లీలో మరి నిన్న ఇప్పటిదాకా సమ్మె స్టార్ట్ అయినప్పుడు జరిగిన ప్రతి దమనకాండను వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చి మెయిన్ ప్రధానంగా ఎక్కడెక్కడైతే టౌన్లో నగరాల్లో ప్రధాన కూడలు ఉందో ఇక్కడ జరిగిన దాడులను ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కూడా పెట్టాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. रिकॉर्ड तब्दील करते हुए गैर कानूनी तौर पर ज़रिए अराजी को दीगर अफराद के नाम करने वाले तहसीलदार MRO और दीगर 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये वाक़या मेदक ज़िले का है, जहां पर MRO की मदद से एक शख्स ने दूसरों की अराजी अपने नाम कर ली। मुतासरा शख्स ने मकामी पुलिस में इस बात की शिकायत की। मसला हल न होने पर पापैया ने SP से शिकायत की। SP ने मसले के हल के लिए एक खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसके बाद तोपरान पुलिस ने तहसीलदार और MRO के खिलाफ केस दर्ज किया। 1/7/2019 రోజున వెల్దుర్తి పోలీస్ స్టేషన్లో వేరే వాళ్ళకి అమ్మినారని చెప్పి అతను పోలీస్ స్టేషన్ దరఖాస్తు ఇస్తే దానిపైన ఈ బూదమ్మ మరియు పెంటయ్య BROల మీద కేసు నమోదు చేసినాం. ఈ విచారణలో భాగంగా దీంట్లో బూదమ్మ మరియు పెంటయ్య BRO MRO తోటి కుమ్మక్కైపోయి ఇది మోసం చేసినట్లుగా రుజువు అయినందున ఈరోజు పెంటయ్యను A2 పెంటయ్య A3 BROను కోర్టుకు రిమాండ్ కొరకు పంపిస్తున్నాము. దీంట్లో A1 బూదమ్మ నడవలేని స్థితిలో ఉన్నందున ఆమెను అరెస్టు చేయలేదు. MRO గారిని కూడా త్వరలో అరెస్టు చేసేది ఉంది. 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान दुनिया के उन 45 ममालिक में शामिल है जहां भुखमरी संगीन सतह पर पहुंच गई है। यह कहना है आंगनबाड़ी वर्कर्स कौमी यूनियन की सेक्रेटरी सिंधु का। उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार इस मामले में हिंदुस्तान से कहीं बेहतर है। संगारेड्डी में आंगनबाड़ी वर्कर्स की रियासती सतह की एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की कौमी सेक्रेटरी सिंधु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब से मरकज में मोदी सरकार आई है, प्राइवेट इदारों को बढ़ावा मिल गया है। उन्होंने कहा कि अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो कौमी सतह पर मरकज के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। आज की परिस्थिति में पूरे आंगनबाड़ी को ही खत्म करने का पूरा मोदी सरकार का और अलग अलग राज्य सरकार का प्रयास हो रहा है। बजट में बहुत भारी कटौती किया गया है मोदी सरकार के आने के बाद में। पोषण अभियान में एक भी पैसा जो लोगों को कुपोषण कम करने के लिए नहीं दे रहा है, पूरा मॉनिटरिंग में दिया जा रहा है और पूरा प्रचार अभियान है। उसके ऊपर जो तेलंगाना का सरकार भी ये अपने आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कोई यूनियनाइजेशन पूरा दुनिया का कानून है, लोगों को अपना यूनियन बनाने का अधिकार है, उसको भी छीन के उसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है, उनको ऊपर में हरासमेंट किया जा रहा है। ये सबके खिलाफ में आने वाले दिनों में हम लोग जो क्या रणनीति तय करेंगे, ये आज का कॉन्फ्रेंस में भी होगा। उसके बाद ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हमारा होने वाला है, उसमें भी पूरे देशव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहरीन में वर्ल्ड सीनियर और जूनियर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप 2019 के मुकाबले मुनक्किद होने वाले हैं। हैदराबादी फाइटर मोहम्मद महबूब खान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए बहरीन रवाना हुए। ये मुकाबला 10-17 नवंबर मुनक्किद होगा। मनामा में मुनक्किद होने वाले मुकाबलों में महबूब खान हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इन मुकाबलों में जुमला 120 ममालिक के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कोच शेख खालिद ने बताया कि महबूब खान शानदार कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जैसे महबूब खान हैदराबाद से इंडिया को रिप्रेजेंट करके फर्स्ट टाइम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने वालों में से एक है। फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियन है, जो अभी इंडिया को फिर से रिप्रेजेंट कर रहे 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप बहरीन में। और महबूब खान से हमारा होप है फिर इंडियन टीम को कि महबूब खान इंडिया का परचम वहाँ पे लहराएंगे फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में। वर्ल्ड के टॉप 10 में से मेरा भी नाम आया है। हमारे जूनियर्स को मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि वो भी रेगुलर आके ट्रेनिंग करे, फिर हर कॉम्पिटिशन्स खेले। हार जीत तो लगे भी है, मतलब अपना हौसला न तोड़ना चाहिए बस। विजयवाड़ा में जलसे मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह के अलावा मकामी रुकन असेंबली जगन मोहन राव और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मीलाद रैली का इनकाद अमल में लाया गया।
रैली में मुसलमानों के अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों और सियासी लीडरों ने शिरकत की। उलमा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के ही लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत थे। विशाखापट्टनम में पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के मौके पर जलसे का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर शहर में रैली निकाली गई, जिसमें उलमा के अलावा हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली के इनकाद का अहम मकसद दीगर मज़ाहिब के लोगों को अमन का पैगाम देना है। इस दौरान मीलाद कमेटी की जानिब से काबा और दीगर मसाजिद के मॉडल्स की नुमाइश की गई, जो आवाम की तवज्जो का मरकज रहे। उलमा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पैगम्बर इस्लाम ने अमन और भाईचारे का पैगाम दिया है, जिसे आम करने की जरूरत है। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अनंतपुर में जलसे मीलाद का एहतमाम किया गया। इस मौके पर शहर में रैली निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। इस दौरान काबा, मक्का और मुख्तलिफ मसाजिद के मॉडल्स की नुमाइश की गई। उलमा दीन ने कहा कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है। आज पूरी दुनिया को अमन का पैगाम देने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। अक़लियतों की तरक्की के लिए बजट में हर साल 950 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। यह कहना है डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा का। उन्होंने कहा कि सफर हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए जिनकी आमदनी सालाना 3 लाख से कम हो, उन्हें हुकूमत की जानिब से 60,000 रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इसके अलावा फी रियम्बर्समेंट स्कीम के तहत गरीब मुस्लिम तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम की जा रही है। మొట్టమొదటి బడ్జెట్లోనే మరి ఇవాళ మైనార్టీలకు 954 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే మనకు సంబంధించిన ఏదైతే ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు, ఎందుకంటే ఇవాళ ఏదైతే ఇమాములకు మౌజన్లకు గతంలో ఇస్తున్న ఏదైతే 5,000 రూపాయలు 3,000 రూపాయలని ఇవాళ పెంచి ఇమాములకు 5,000 నుంచి 10,000కు పెంచడం జరిగింది గౌరవ వేతనం. మరి అదేవిధంగా మౌజన్లకు 3,000 నుంచి 5,000కు పెంచడం జరిగింది. సమగ్రాభివృద్ధి కోసం ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ లాగానే మైనార్టీలకు కూడా సప్లాన్ రాబో రోజుల్లో తీసుకురాబోతున్నాం. మరి అదేవిధంగా మైనార్టీ హజ్ యాత్రికులకు కూడా 3 లక్షల లోబడి ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకి అందరికీ కూడా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి 60,000 రూపాయలు ఆర్థిక సాయం మొట్టమొదటిసారిగా మా ప్రభుత్వం ఇవాళ ఇవ్వబోతుంది. మరి 3 లక్షల పైబడిన ఆదాయం ఉన్న వాళ్ళకందరికీ కూడా 30,000 రూపాయలు ఆర్థిక సాయం మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందించబోతున్నారు. 11 नवंबर को मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। इसी मुनासिबत से 11 नवंबर को विजयवाड़ा में यौम तालीम प्रोग्राम मुनक्किद होगा, जिसमें वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी शिरकत करने वाले हैं। इस दौरान उर्दू के फ़रोग़ के लिए खिदमात अंजाम देने वालों में अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। साथ ही जिले के 300 सरकारी स्कूलों के तलबा में भी अवार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। जिला कलेक्टर इम्तियाज ने बताया कि वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। డే మరియు జాతీయ విద్యా దినం మనకు జరగబోతున్నాయి. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హాజరవనున్నారు. మరి మౌలానా అబుల్ కలాం ఆజాద్ గారు వారి జన్మదినాన్ని జయంతిని పునస్కరించుకొని మరి మైనారిటీల దినోత్సవము అలాగే జాతీయ విద్యా దినము 2 నవంబర్ 11వ తేదీన జరుగుతున్నాయి. భారతదేశానికి మొట్టమొదటి విద్యాశాఖ మంత్రిగా ఆయన సుదీర్ఘంగా 11 సంవత్సరాలు మరి ఆయన పనిచేయడం జరిగింది. ఈ మైనారిటీల సంక్షేమ శాఖ దినోత్సవం సందర్భంగా కొన్ని అవార్డులను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. रन फॉर हेल्थ स्लोगन के साथ विजयवाड़ा में रनर्स की क़यादत में 5K, 10K और 20K रन का एहतमाम किया गया। कृष्णा जिला कलेक्टर इम्तियाज ने रन को झंडी दिखाई। रन में सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। उन्होंने रनर्स की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम की सताइश की। दौड़ में कामयाब रनर्स में कलेक्टर के हाथों अवार्ड्स तकसीम किए गए। ప్రతి ఒక్కరిలో ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా జీవించడానికి
కొన్ని నీతి నియమాలు పాటించాలని, అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మనకు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలని చెప్పేసి, తర్వాత వాకింగ్, జాగింగ్ ఇలాంటివన్నీ వాటి మీద దృష్టి సారించి మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఒక మంచి నిర్ణయంతో విజయవాడ రన్నర్స్ వారు ఇది చేపట్టడం చాలా ఆనందదాయకం. మరి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే పార్టిసిపేషన్ కూడా మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇంతమంది దీంట్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొనడానికి వచ్చారు. మరి వారందరికీ నేను శుభోదయం పలుకుతూ మరి వారందరినీ ఇదే విధంగా ప్రతి దాని పట్ల, మన సమాజం పట్ల, వారి ఆరోగ్యం పట్ల, పర్యావరణం పట్ల వారి శ్రద్ధ వహించాలని కోరుకుంటున్నాను. आंध्र प्रदेश के SRRC कॉलेज में उर्दू मीडियम से MA शुरू करने के लिए कॉलेज इंतजामिया से नुमाइंदगी की गई। कॉलेज हुकाम ने आने वाले तालीमी साल से उर्दू जरिए तालीम से MA शुरू कराने की यकीन दहानी कराई है। इससे ज़्यादा प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं उर्दू मीडियम के, और 4 उर्दू हाई स्कूल्स हैं, 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स जिसमें उर्दू एक सब्जेक्ट है वो भी है, तो एक जूनियर कॉलेज है। एक डिग्री सेक्शन के लिए हमने 2004 से मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट और अंजुमन तरक्की व फलाह उर्दू जो हमारी ज़ैली तंजीम है, इन दोनों ने मिलकर 2004 से 2017 तक बहुत मेहनत की। MA उर्दू के लिए उर्दू मीडियम बच्चे जो BA HEP से बाहर फारिग होंगे तो उनके लिए MA उर्दू या MA में जो भी ग्रुप उर्दू मीडियम से कोई भी एक ग्रुप देने के लिए हमने जो है आज SRR कॉलेज के डॉक्टर वैरागा जोशी साहब जो हमारे प्रिंसिपल हैं और साथ में RJD भी हैं, तो उनको हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारी मांग ये है, हमारा डिमांड ये है कि जल्द से जल्द, अब ये 3 साल हो गए हैं उर्दू BA के, तो जो बच्चे BA फाइनल ईयर करके बाहर आएंगे तो इसी साल नेक्स्ट ईयर से अगर MA उर्दू आ गया तो ये बच्चे MA भी पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। ABVP ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी जरिए तालीम में तब्दील करने की मुखालफत की। ABVP के कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, मादरी जबान के बजाय अंग्रेजी जरिए तालीम की मुखालफत की। Andhra Pradesh government YS Jagan Mohan Reddy garu given a new GO to as implemented all 6,500 schools in Andhra Pradesh should learn in English medium only. So, Andhra Pradesh students has so many of students and teachers are losing their problems. Andhra Pradesh people without Telugu they can't live. Without Telugu they can't live. Only English. This is not priority to us. We want Telugu. So we are demanding that Andhra Pradesh government please stop this GO implementing GO number 81. We are demanding to stop this GO immediately. If they do not stop our GO number 81, we are through state-wise we are doing agitation, state-wide collectorate agitations and RDO, MRO agitations, higher education sector. आज ईद मिलादुन्नबी है, चार जानिब खुशियों का माहौल है। आज के दिन को आखिरी पैगंबर के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। पूरी दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में रतबुल लिसान है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। ईद मिलादुन्नबी एक खुशी का दिन है। आज 12 रबी अव्वल है। ये दिन हर साल अपने नबी आखिरुज़्ज़मा की विलादत की मुनासबत से मनाया जाता है। ये रबी अव्वल के महीना में आता है जो इस्लामी तक़वीम के लिहाज से तीसरा महीना है। इस पाक महीने की अजमत इसी बात से आया है कि अल्लाह ने सैयदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुहूर इसी में फरमाया। इसी लिहाज से इसको दीगर महीनों पर फौकियत हासिल है। इस्लाम में इस माह की बड़ी फजीलत है। एक तो मौसम बहार, फिर आमदे हुजूर बहारा, ये बिल्कुल नूरुन आला नूर का मिस्ताक है। रबी अव्वल और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गरामी के दरमियान बहार की मुनासबत है। बहार लोगों के लिए खुशियाँ लाती है, रहमत वाली बारिशें लाती है, खज़ां का असर ज़ाइल हो जाता है और ये तमाम सिफात हमारे प्यारे मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। इसीलिए ईद मिलादुन नबी पूरी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाता है। नात ख़ानी की महफिलें होती हैं जिसमें उलमा किराम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत
बासआदत आपकी ज़ात मुबारका और सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, वो किसी खास तबके के लिए नहीं आए थे। यही वजह है कि पूरी दुनिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना और उनकी तारीफें की। खास तौर पर गैर मुस्लिम शायरों ने उनकी शान में नातें कहीं। नात के चंद अशार कुछ यूं हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। बड़े छोटों में जिसने एक अखुवत की बिना डाली, जमाने से तमीज़े बंदो आका मिटा डाली। नबी ऐसा कोई दुनिया में पैदा न था, न अब है और न होगा। मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मकाम, वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। ये चंद झलकियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम नबी के पैगाम पर अमल पैरा हैं? वक्त के साथ साथ लोगों ने इस दिन की पाकीज़गी को फरामोश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।